Hello and welcome back to my channel English Basics and I am your online tutor Nikha Tunesa. So this is the next video on confusing words. हम confusing words पे videos बना रहे हैं, अलग से playlist मैंने आपको provide कर रखी है, उसमें आप जाके देख लीजिए कौन कौन से confusing words हमने cover कर लिए हैं और आगे भी हम करते जाएंगे। और आज का भी topic जो है हमारा है confusing words का। सो वो वर्ड्स होते कौन से हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन्स होती हैं? There are numbers of set of homophones in English which despite sounding identical and their pronunciation have completely different meanings. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन वाइल स्पीकिंग और वाइल रीडिंग और वाइल लिसनिंग हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। अगर हमें प्रॉपर वर्ड का मीनिंग पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो दो वर्ड्स जो होते हैं जिन जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं उनको हम होमोफोन्स भी बोलते हैं। English has a lot of confusing words, especially those words that look alike and sound alike. There are two words I want to talk about today and no exceptions. ओके तो जो खास तौर पे वो जो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है, उसके बीच में एक दो अल्फाबेट का डिफरेंस होता है और उनके साउंड जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें उसकी होती है। और जिन वर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा, जो बच्चे हैं और जो दूसरे लोग भी हैं उन वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। And the words that we are going to talk about today is then and then. तो ये दो वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, then and then. So similar sounding, spellings almost same. सिर्फ किसका फर्क इसमें डिफरेंस है? A and E. So we will be talking about then and then, knowing their meaning, their differences, and how can we remember the difference between the two words. So choosing between then and then can be difficult since they are only a letter apart and they sound pretty close to each other. But if you are not sure which word to use and when, don't worry, we will talk about this today. So when we are writing any sentence or when we are listening any sentence or anything and there come the word then. So we get confused that which then is used here, THAN or THEN. क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है और इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है हमें देन एंड देन में कि हमें कौन सा जो वर्ड है उसे यूज करना चाहिए। फर्स्ट लेट्स गेट टू नो द मीनिंग ऑफ देन। देन का मीनिंग क्या है और हम उसको कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं। Then is a grammatical particle analyzed as both a conjunction and a preposition in the English language. It introduces a comparison and is associated with comparatives with a word which as such as more, less and fewer. Typically it measures the force of an adjective or similar description between two predicates. So जो then word है वो English grammar में as a conjunction and as a preposition use होता है और ज्यादातर हम then जब यूज करते हैं जब हम So now have a look over then with en. Then means at a particular time in the past or in the future. तो then जो है वो एक particular time को refer करता है past में या तो फिर future में. Then is used when you refer to something which was true at a particular time in the past but not true now. तो then जो है उस पर्टिकुलर टाइम को रेफर करता है जो कि पास्ट में हुई थी और उस वक्त वो ट्रू था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है। You use then to say that one thing happens after another or if another on the list. तो जब एक लिस्ट होती है और उसके बाद एक आप चीज You also use then to introduce a summary of what you have said or the conclusion that you are drawing from it.
तो देन जो है हम किसी भी जो भी हमने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया होता है उसी समरी के लिए हम उसको कंक्लूड करने के लिए हम देन का यूज करते हैं. यू यूज देन विद वर्ड लाइक नाउ, वेल एंड ओके टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक और अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं या न्यू टॉपिक की बात शुरू करते हैं या न्यू पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो हम उसमें कुछ वर्ड्स यूज करते हैं देन के साथ, जैसे नाउ देन, वेल देन, ओके. Okay, now have a look over the difference between both the then. THE and then and THA and then. इन दोनों के बीच में difference क्या है? THE and then is commonly used to express a sense of time or what come next or used to be. And THA and then is used to form comparison between two things. तो THE and then जो है वो ज्यादातर जो है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेंटेंस में यूज होता है. और THA and then जो है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, दो या उससे ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए. तो आपको समझ आ गया देन और देन में डिफरेंस. एक तो स्पेलिंग का डिफरेंस है ई और ए का. नाउ हाउ टू रिमेम्बर द डिफरेंस. डिफरेंस हमें पता है, मीनिंग हमें दोनों के पता है, लेकिन जब भी देन एक सेंटेंस में आए या तो फिर हमें लिखने की जरूरत है तो हमें कैसे याद रहेगा कि हमें कौन सा देन यूज करना है यहाँ पे. I mean, आपको स्पेलिंग उस टाइम कैसे याद रहेगी कि आपको THEN लगाना है या THAN लगाना है. मीनिंग आपको दोनों का पता है, डिफरेंसेस आपको दोनों का पता है, पर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप इस चीज को याद कैसे रखोगे. तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप दे देती हूँ इस चीज को याद रखने के लिए कि आपको कौन सा देन यूज करना होगा. तो आप दोनों देन में से सेलेक्ट कैसे करेंगे. नाउ लेट्स सी द टिप टू रिमेंबर द डिफरेंस. So a good trick to keep track of these words is that then is usually used to indicate time. Both then and time have a letter E in them. तो आप then को कैसे याद रखेंगे. THEN वाला then जो होता है जिसमें E आता है वो हमेशा यूज होता है किसी टाइम को इंडिकेट करने के लिए. तो then और टाइम दोनों में E आ रहा है आपका, तो आप इससे याद रखेंगे कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है TIME टाइम, तो हम THEN वाला जो है यूज करेंगे. अब यहाँ पे आप दो वर्ड्स देख लीजिए देन और टाइम, स्क्रीन पे आपको शो कर रहे हैं. देन और टाइम दोनों में ई आ रहा है, तो इसमें जो. Thank you for watching my video. Thank you so much and I would request you to please subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कजन से शेयर कीजिए. और जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश में थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, ग्रामर में जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करना चाहता है, अपने डाउट्स वगैरह, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ फॉर मी. और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ. So this was it for today. Thank you so much and take care. Bye bye.